A very good morning to all of you students. So today we are going to discuss chapter 11. The chapter name is Building, Painting and Books. So today first of all we are going to see one story here, which is a Marutstami and the Iron Pillar. Marutstami was so excited his brother had propelled his wheelchair all along the dusty stony path, past the towering Qutub Minar and up to the metal ramp. It had been tough, but now he was here in front of the famous iron pillar. It was unforgettable experience. अब देखिए जो मर्द स्वामी है वो एक आयरन पिलर को जो है वो देखना चाहता था, तो पाथ जो है वहाँ का वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पत्थर और डस्टी पास था। तो अब क्या है, जब वो वहाँ पे पहुँच गया है तो अब उसे वहाँ कैसा लग रहा है वो उससे बताना चाह रहा है। तो वो एक ऐसा मोमेंट है जो कि कभी भूला नहीं जा सकता। इट्स एन वेरी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। So let's see what we have here. Metallurgy. The ancient Indian metallurgist made a major contribution to the metallurgical history of the world. Archaeological excavations have shown that the Harappans were a master craftsmen and had a knowledge of a copper metallurgy, and they even manufactured bronze by mixing a copper tin, while the Harappans belonged to the Bronze Age. Their successor belonged to the Iron Age and produced highly advanced type of the iron forged, iron wrought iron and the cast iron. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जो मेटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो काफ़ी टाइम से जो मेटलर्जिस्ट होते थे, मतलब है कि बेसिकली ये जो रिलेटेड है, ये जो मेटल्स होते हैं उनसे रिलेटेड साइंस के बारे में, कि वहाँ पे जो है उस समय कैसा होता था। हड़प्पा में कई सारे ऐसे मास्टर क्राफ्टमैन थे जो क्या करते थे, कई तरह की कॉपर मेटलर्जी करते थे, या फिर हम कह सकते हैं कई तरह के मेटल्स को एक साथ मिक्स करके जो है एक नया मेटल बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी की जाती थी और काफ़ी एडवांस टाइप के आयरन जो है बनाए जाते थे, जैसे कि आयरन फोर्ज्ड आयरन, रफ्ड आयरन एंड द cast iron. Now we see the iron pillar. The iron pillar at Mehrauli, Delhi is a remarkable example of the skill of Indian craftsperson. It is made of the iron 7.2 meter high and weight over 3 tons. It has made about 1500 years ago. We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra, who probably belonged to the Gupta dynasty. What is amazing is this fact that the pillar has not rusted in all these years. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है आयरन पिलर की, जो महरौली है दिल्ली में, वहाँ पे जो है ये काफ़ी रिमार्केबल एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे ऐसे स्किल्स जो है इंडियन क्राफ्ट पर्सन के उन्होंने ऐसे बनाए हैं कि जो वहाँ का एक आयरन पिलर है वो 3 टन का है, एंड वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, मतलब 1500 साल पहले उसे बनाया गया है। लगभग 3 टन का है जो, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंस्क्रिप्शंस मेंशन की गई हैं। इसके साथ साथ रूलर्स के जो नेम है वो नेम भी है वहाँ पे। लेकिन अमेजिंग बात तो ये है कि वो पिलर में आज भी रस्टिंग नहीं हुई है। तो ये किस तरह से उन्होंने बनाई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। Building in a brick and stones. The skill of our craftsperson are also apparent in the building that have survived, such as stupas, and the word stupa means a mound. While there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, and these have a certain common features. Generally, there is a small box placed at the center or the heart of the stupa. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कई सारे जो क्राफ्ट पर्सन हैं उनकी अपनी स्किल्स हैं जो कि अपेरेंट है, लाइक बिल्डिंग जो है वहाँ पे सर्वाइव की जा रही है, सच जो स्तूपाज हैं उनका मतलब माउंड है। इसके साथ साथ जो और भी सेवरल काइंड की स्तूपाज हैं वो राउंड हैं, टॉल हैं, बिग है, स्मॉल है। तो अलग अलग तरह के फीचर्स जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे कई स्मॉल बॉक्सेस भी जो है वो उसके सेंटर में यानी हार्ट में स्तूपा के डाले गए हैं। This may contain a bodily remains such as tin, bone and ashes of the Buddha or his followers, or things they used, as well as the precious stones and the coins.
अब ये जो स्तूप्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जो बुद्धा के और भी चाहने वाले थे या जो उन्हें मानने वाले थे, उन्होंने भी उनमें कई सारी चीज़ें जो हैं ऐसी डाली हैं या बनाई हैं। This box known as a relic cassette and was covered with the earth. Later a layer of a mud brick or a baked brick was added on a top. अब देखिए ये जो बॉक्स है इनको ही हम रिलिक कास्केट के नाम से जानते हैं, और ये जो कवर करता है ये अर्थ को कवर किया जाता है इससे। लेटर अ ईयर, और इसके बाद जो है काफ़ी सालों बाद की बात की जा रही है, जब मिट्टी के ईंट या फिर हम कह सकते हैं जो भी पके हुए ईंट होते हैं उन्हें भी इसके टॉप पे डाला जाना शुरू किया गया। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम कवर्ड विद द कार्व्ड स्टोन स्लैब्स, और जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है उसे भी कभी कभी क्या होता था, स्टोन के स्लैब से कवर किया जाता था उस डिज़ाइंस को। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा, और ये जो पाथ है इसे नोन हमें समझते थे प्रदक्षिणा पाथ के नाम से, और ये जो है स्तूपा तक लेके जाते थे ये पाथ। दिस वॉज सराउंडेड विद द रेलिंग्स, entrance to the path was through gateways. Devotees walked around to the stupas in a clockwise direction. As a mark of devotion, both railing and gateways were often decorated with the sculpture. अब देखिए इसके साथ साथ जो पाथ है उसमें कई उसे प्रदक्षिणा पाथ कहते थे और इस स्तूपा तक लेके जाता था। इसके साथ साथ इसके सराउंड में कई सारी रेलिंग्स जो है लगाई जाती थी। एंट्रेंस जो होता था इस पाथ के गेटवे का, वहाँ पे भी जो है स्तूपा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता था एक डिवोशन में, और बहुत जो रेलिंग्स होती है उसकी उस पर कई जो रेलिंग्स होती है दोनों साइड की पाथ पे उस पर कई तरह के डेकोरेशन या स्कल्पचर जो है वो किए जाते थे। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7 पेज 105। दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिशेंट स्तूपा वॉज existed. Many of the stone carvings for decorating the stupa were made about 2000 years ago. Other buildings were hollowed out of rock to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with the sculpture and painted walls. Some of these earliest Hindu temples were also built at this time. Deities such as the Vishnu, Shiva and the Durga were worshipped in this shrines. अब देखिए कुछ समय पहले की अगर बात की जाए उस टाइम पे तो कई सारे हिंदू टेम्पल भी हुआ करते थे और उस टाइम पे बनाए गए थे, जिसमें कई तरह की देवी देवताओं की जो है पूजा की जाती थी, जैसे कि विष्णु है, शिव हैं, दुर्गा है। तो ये सारे जो भगवान हैं इनकी भी पूजा अर्चना उस समय की जाती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज द गर्भगृह, और इस पर टेम्पल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था वो एक रूम होता था जिसको कि गर्भगृह के नाम से जानते थे। और यहाँ पे जो है जो भी चीफ पंडित होता था वो जो चीफ भगवान होते थे, मतलब जो भी बड़े भगवान को वहाँ रखा गया है उन्हें वहीं पे बिठाया जाता था, और वहाँ पे जो पंडित होते थे वो भी जो भी रिलेटेड रिचुअल्स होते थे पूजा पाठ की वो सारी चीज़ें वो वहीं पे किया करते थे। Often, as at a Bittergaon, a tower known as the Shikara was built on the top of the गर्भगृह। अब देखिए जो भितार गांव की बात की जा रही है, वहाँ पे जो टावर आपने देखा होगा जिसे कि शिकारा के नाम से जाना जाता है, ये हमेशा जो भी गर्भगृह होता था उसके टॉप पे इसे बनाया जाता था। मार्क दिस आउट एज अ सेक्रेड प्लेस, और उसे जो है एक सेक्रेड प्लेस के तौर पे मार्क किया जाता था। बिल्डिंग ऑफ शिकारास रिक्वायर्ड अ केयरफुल प्लानिंग, और जो बिल्डिंग्स होती थी शिकारा की उसे एक बहुत केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती थी। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज द मंदप्पा। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, और सभी टेम्पल्स जो होते थे वहाँ पे एक स्पेस होता था जिसे कि मंदप्पा के नाम से जाना जाता था, और ये पीपल के असेंबल्स होने के लिए यानी लोगों के इकट्ठा होने के लिए उसे बनाया जाता था। फाइंड द महाबलीपुरम एंड द ऐहोल ऑन मैप 7 page 105. Some of the finest stone temple were built in this town. Some of these are shown here. अब देखिए यहाँ पे जो महाबलीपुरम है और जो ऐहोल है वो मैप 7 पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कई फाइनेस्ट स्टोन की जो टेम्पल्स हैं वो बनाए गए हैं, जो कि जिसमें से कुछ टेम्पल जो है यहाँ पे शो किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हर पेज में यहाँ पे एक टेम्पल का जो है चित्र बनाया गया है। अब देखिए आगे, How were stupas and temples built? There were several stages in building a stupa or a temple. अब देखिए जो जब हम स्तूपा बनाते हैं तो उसके कई सारे सेवरल स्टेजेस होते हैं उसे बनाने के।
यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दिस एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर, और यूजुअली जो है किंग्स और क्वींस जो है वही डिसाइड करते हैं इन्हें बिल्ड करने का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, और सबसे पहले इसके लिए जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का स्टोन उन्हें ढूंढना होता है, उसके बाद उसे जमा करना होता है। देन एक प्लेस से दूसरी प्लेस जहाँ पे उसे जाना है, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसे ट्रांसफ़र करना होता है केयरफुली। उसके बाद जो है उसे न्यू बिल्डिंग के लिए चूज़ किया जाता है और बनाना स्टार्ट किया जाता है। दिस रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू अ पिलर्स, और यही सारे जो रफ स्टोन्स हैं इनको ऐसा शेप दिया जाता है कि वो अच्छे पिलर्स के पैनल में उसे बदला जा सके। फ्लोर्स एंड सीलिंग्स एंड देन दिस हैड टू बी प्लेस्ड इन अ प्रिसाइसली द राइट पोजीशन, और उसके बाद ही जो है हमें इसे सही तरीके से उस पोजीशन पे प्लेस करना होता है। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली spent a money from their treasury to pay the craft person who worked to build this splendid structure. क्विंग और क्वीन जो होते हैं वो सारा पैसा जो है बेसिकली अपने खजाने से इस पर खर्च करते हैं और क्राफ्ट पर्सन को देते हैं जो कि इतना अच्छा स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। Besides, when a devotee come to visit the temple or the stupa, they often brought a gift which were used to decorate the building. For example, an association of ivory worker paid for one of the beautiful gateway at Sachi. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि जब भी कोई भक्त आता है उस मंदिर को घूमने के लिए तो उस मंदिर को बहुत अच्छा पाते हुए वो क्या करता है, उसके बदले में एक उपहार देता है जो बिल्डिंग की डेकोरेशन के काम आता है। जैसे यहाँ पे सांची स्तूप के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जो ब्यूटीफुल गेटवे बनाया गया है तो उसके लिए वहाँ का जो वर्कर है उसे आइवरी जो वर्कर्स हैं वहाँ के उनको वहाँ पे पे किया जाता है। अमॉन्ग द अदर हु पेड द डेकोरेशंस वर अ मर्चेंट, फार्मर, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ एंड द हंड्रेड्स ऑफ मैन। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सारे डेकोरेशंस जो हैं वो उसमें से जो लोग रहते हैं वो कौन रह सकते रहते हैं, मर्चेंट रहते हैं, फार्मर रहते हैं, गार्लैंड मेकर रहते हैं, परफ्यूमर रहते हैं, स्मिथ होते हैं। तो ये सारे लोग होते हैं जो इसे बिल्ड करने में या हम कह सकते हैं स्पॉन्सर करने में जो है हेल्प करते हैं। Women who are known only by their names which are inscribed on the pillar, railing and walls. So when you get a chance to visit any of this building, remember how several hundreds of people probably worked to construct and decorate them. तो यहाँ पे जो कई सारी वुमेंस होती हैं थी यानी कई औरतें जो होती थी उनके नाम जो है आपको उस पिलर पे, उस रेलिंग पे, वॉल्स पे आपको देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप ऐसे किसी प्लेस पे घूमने जाते हैं तो याद रखिएगा कि वहाँ पे ऐसे कई सारे जो है लोग हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, काम किया है, उसे डेकोरेट किया है, तो उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। अब चलिए हम देख के आते हैं आगे। देखिए यहाँ पे जो है पेंटिंग बताई गई है अजंता की। अजंता में जो भगवान बुद्ध है उनकी पेंटिंग है और वो यहाँ पे पेंटिंग ये कहना चाह रही है कि आप डिस्क्राइब करिए इसे देख के आपको क्या महसूस होता है। पेंटिंग। Find the Ajanta on map 7, page 105. This is a place where the several caves were hollowed out of the hills over the century. Most of these were monasteries for Buddhist monks, and some of them were decorated with a painting. Hence are some examples. As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of the torches. The color which are vivid even after the 1500 years were made of the plants and the minerals, and the artists who created this splendid work of art remain unknown. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जब भी आप अजंता कभी जाते हैं घूमने, वहाँ के हिल्स और सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे जब आप घूमेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कई सारी डेकोरेटेड पेंटिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। या उसमें से कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डार्क सर्कल वाला पेंटिंग जो है वो कुछ इस तरह का है। इस पेंटिंग को ऐसा बनाया गया है कि ये लाइट ऑफ टॉर्च है, मतलब इस पर जब रोशनी पड़ती तो क्या होती है वो और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके आती है। तो ये कुछ इस तरह से बनाया गया है और इसे कम से कम 1500 साल पहले बनाया गया है। और ये जो है इसके साथ साथ जो प्लांट्स और मिनरल्स हैं
और भी सारी चीज़ों को इस वो आर्ट में उन्होंने ऐड किया है। और भी कई सारी चीज़ें जो अननोन है अभी तक। The world of books. Some of the best known epics were written during this period. Epic are grand, long composition about the heroic men and women and include stories about gods. A famous Tamil epic, the Slipadikaram, was composed by a poet named Lango around 1800 years ago. It is the story of a merchant named Kovalan who lived in a puhar and fell in love with a courtesan named Madhavi, neglecting his wife Kannagi. Later, Kannagi left the puhar and went to the Madurai, who was wrongly accused of the theft by a court jeweler of the Pandya king. The king sentenced a Kovalian to death, and the Kannagi, who still loved him, was full of grief and anger, and at this injustice, he destroyed the entire city of Madurai. अब यहाँ पे देखिए कई सारी बुक्स जो हैं आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, जिसमें कई तरह की एपिक स्टोरीज़ जो हैं वो वहाँ पे, जैसे कि एक फेमस तमिल एपिक स्टोरी है जिसमें स्लिपादिकरम के बारे में बताया गया है, जो कि पोएट जिन्होंने उसे बताया उनका नाम मिलागो है। और ये करीबन 1800 साल पहले की स्टोरी है, जिसमें एक मर्चेंट होता था जिसका नाम कोवालन है, और वो एक पुहार में रहता था। वो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता था। वो लड़की जो है बेसिकली वो जो है कोर्टेसन की होती है, उसका नाम माधवी रहता है। उसने अपनी वाइफ को जो है मतलब कानागी उसे निगलेक्ट किया होता है। ही एंड कानागी जो थे उन्होंने फिर पुहार को जो है छोड़ दिया, और जब वो मदुरई गए तो वहाँ पे वो जो है एक चोरी के नाम पे उन्हें बहुत ही स्ट्रांगली अक्यूज़ किया गया बाय द ज्वेलर, जो पांड्या किंग थे उनके द्वारा। तो क्योंकि जो कोवेलियन है उसको सेंटेंस किया गया डेथ का, तो जो कनगी थी क्योंकि वो उससे अभी भी प्यार करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ और एंगर में थी, मतलब दुख और गुस्से में थी, तो और इस इनजस्टिस के खिलाफ थी जो अन्याय उनके साथ किया गया। तो उसने उस गुस्से और उस के बदले में पूरी एंटायर सिटी को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया ऑफ मदुरई। Another Tamil epic, the Mahimkalai, was composed by a Satanar around 1400 years ago. This describes the story of the daughter of a Kovalan and the Madhavi. This beautiful composition were lost of the scholar for many centuries, till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. अनादर एक जो है तमिल की एपिक स्टोरी है जिसका नाम है माहिम कलाई, और इसे कंपोज की गई है सत्तानार ने, जो कि करीबन 1400 साल पुरानी बात है। इस स्टोरी में एक डॉटर जो है कोवलन की और माधवी की, उसके बारे में बताया गया है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है कंपोजिशंस है, काफ़ी सेंचुरी पहले का। इस मैन्युस्क्रिप्ट को जो है रीडिस्कवर किया गया है करीबन 100 साल पहले। और जो अदर राइटर्स हैं जैसे लाइक कालिदास जो है उन्होंने इसे संस्कृत में लिखा है। अब हम देखेंगे आगे रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। A number of Hindu religion stories that were in a circulation earlier were written down around the same time. This include the Puranas. Purana literally mean old, and the Puranas contain the stories about gods and goddesses such as Vishnu, Shiva, Durga and Parvati. They also contain the details on how they were to be worshipped. Besides, they were accounts about the creation of the world and about kings. अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ हिंदू रिलीजियस स्टोरी के बारे में बताया गया है, जो कि कई सारी सर्कुलेशन में कई सारे टाइम पहले से। इसमें कई सारे पुराण हैं लिटरेरी जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। इसके साथ साथ जो है इसमें कई सारी स्टोरीज़ जो है वो भगवान और देवियों के बारे में, जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती, और ये कई सारे डिटेल्स जो हैं कंटेन करते हैं पूजा पाठ के। और इसके साथ साथ कई सारे अकाउंट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड किस तरह से किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें इंक्लूडेड हैं। द पुराण वर रिटन इन अ सिंपल संस्कृत वर्स एंड द meant to be heard by everybody, including women and the Shudras who were not allowed to study the Vedas. They were probably recited in a temple by a priest and people came to listen to them.
अब देखिए जो कई सारे ऐसे पुराण हैं जो कि सिंपल संस्कृत में लिखे गए हैं, वो लोगों ने एक दूसरे से सुने। कई सारी वुमन जो हैं और जो शूद्रास है, जिन्हें अलाउ नहीं किया गया था स्टडी के लिए, मैंने वेद को पढ़ने के लिए, वो भी इनके बारे में जो है थोड़ी चीज़ें जानती हैं, क्योंकि उन्होंने उसे सुना है। The Puranas were written in the simple Sanskrit verse and were meant to be heard by everybody, including women and Shudras who were not allowed to study the Vedas. They were probably recited in temples by priests and people came to listen to them. अब देखिए कई सारे पुराण जो हैं सिंपल संस्कृत में लिखे गए हैं और वो सुनने के लिए बने गए हैं सभी लोगों के लिए, इंक्लूडिंग वुमन और शूद्रास। तो सभी लोग जो कि अलाउड नहीं है स्टडीज़ के लिए, लेकिन वो सुन ज़रूर सकते हैं कि वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रीस्ट, जो पंडित होते थे वो टेम्पल के, उसे पढ़ के सुनाते थे। Two Sanskrit epics and the Mahabharata and the Ramayana had been popular for very long. देखिए यहाँ पे दो संस्कृत एपिक्स की बात की गई है, स्टोरीज़ की, जो कि महाभारत और रामायण है, और ये काफ़ी टाइम पुराना है और इसके बारे में जो है आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे, जैसे कि उसमें पांडव हैं और भी चीज़ें, तो ये काफ़ी पहले से जो है वो चली आ रही हैं। The story itself was an old one. It was written down in the form in which we know it today. About 1500 years ago, both the Puranas and the Mahabharata are supposed to have been compiled by a Vyasa. The Bhagavad Gita, about which you learn in the chapter 9, was also included in the Mahabharata. इवन जो भी कई सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं महाभारत की से रिलेटेड, भगवद गीता से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें चैप्टर 9 में आपने पढ़ी है रिलेटेड टू महाभारत। The Ramayana is about the Ram and the prince of Kosala who sent into exile. His wife Sita was abducted. मतलब रामायण में किस तरह से चीज़ें बताई हैं। जो राम है वो क्या थे, राजा थे, और इसके साथ साथ वो कोसला के राजा थे, उन्हें वनवास के लिए भेजा गया। उनकी वाइफ सीता थी, उसके साथ साथ उनको जब किडनैप किया श्रीलंका के किंग ने, मतलब लंका के किंग ने, जिनका नाम रावण था, तो किस तरह की लड़ाई हुई, फिर वो अयोध्या कैसे लौटे, तो ये सारी स्टोरीज जो हैं आपको उसमें देखने को मिलेगी। Stories told by the ordinary people. Ordinary people is also told stories, composed poems and the songs, sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in the collection of the stories, such as the Jatakas and the Panchatantra, which are written down around this time, and stories from the Jatakas were often shown on the railing of the stupa and the painting in places such as the Ajanta. Here is one such story. अब देखिए आपने देखा होगा कई सारी स्टोरी जो है आपको पंचतंत्र में और सॉन्ग्स में और सारी चीज़ों में देखने को और सुनने को मिलती है। इसके साथ साथ कई सारे स्तूपास जो हैं और पेंटिंग्स जो हैं, वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ें जो हैं देखने को और सुनने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जो स्टोरी बताई है, देखिए वो स्टोरी ऑफ मंकी किंग के बारे में बताई गई है कि उन्हीं से रिलेटेड जो एक स्टोरी है, इसे हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। रिटन बुक्स ऑन साइंस, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब कई सारी बुक्स जो हैं वो साइंस के बारे में भी, साइंस में भी लिखी गई हैं। अब देखते हैं क्या है वो। This was also the time when the Aryabhatta, a mathematician and the astronomer, wrote a book in Sanskrit known as the Aryabhatiam. He stated that the day-night were caused by the rotation of the earth on its axis. Even though it seems as the sun is rising and setting every day, he developed a scientific explanation for eclipses as well. He also found a way of calculating circumferences of a circle which is nearly as accurate as the formula we use today. Brahmihira, Brahmagupta and the Bhaskaracharya were some other mathematicians and the astronomers who made several discoveries. Try and find out मोर अबाउट दैम। अब देखिए कई सारी बुक्स जो हैं आपको साइंस से बेस्ड पे भी लिखने को मिलेगी, जैसे कि जो आर्यभट्ट थे, ये काफ़ी बड़े जो हैं गणितज्ञ कह सकते हैं हम, और इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टयम, और उन्होंने उस बुक में बताया था कि ये जो दिन और रात हो रहा है ये किसी और वजह से नहीं, बल्कि अर्थ के यानी पृथ्वी के अपने ही अक्षय पे घूमने की वजह से हो रहा है। इसके साथ जो हमें जो सूर्य है वो हर दिन उगता और ढलता हुआ दिखाई देता है, ये इसके पीछे एक अपना ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था, जो कि क्या था, इक्लिप्स का था। ही ऑल्सो फाइंड, और उन्होंने एक और जो है वे फाउंड किया था कैलकुलेट करने का, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल विच इज़ नियरली एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज़ टुडे, और जो कि लगभग यहाँ तक कि सही था जो फॉर्मूला आज हम यूज़ कर रहे हैं उस फार्मूले से। इसके साथ साथ और भी लोग थे, जैसे कि वामन, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, ये सारे मैथमेटिशियंस और
एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। ये इन लोगों ने भी जो है कई तरह की स्टोरीज़ जो है डिस्कवर की थी और उसके बारे में जाना था। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया है ज़ीरो, वाइल द न्यूमेरियल हैड बीन यूज्ड द अर्लीस्ट मैथमेटिक्स इन इंडिया now invented a special symbol for the zero. This system of counting is adopted by the Arab and had been spread to the Europe. It is continued to be in use of throughout the world. अब देखिए ज़ीरो के बारे में बताया गया है कि ज़ीरो जो है काफ़ी बड़ा नंबर है जिसे हम एज इन मैथमेटिक्स में हम यूज़ कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स जो है इंडिया में इन्वेंट हुआ था और इसके लिए एक स्पेशल सिंबल भी बनाया गया था ज़ीरो के लिए। और ये सिस्टम जो है ये काउंटिंग के लिए यूज़ होना शुरू हुआ। सबसे पहले ये जो है अडाप्ट किया अरब ने, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी यूरोप में और भी जगह पे क्या हुआ, स्प्रेड होने लगा। अब हम देखेंगे आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज़ अ वेल नोन सिस्टम ऑफ द हेल्थ साइंस एंड दैट वाज डेवलप्ड इन द एंशियंट इंडिया। अब यहाँ पे आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है कि आयुर्वेदा जो है उसका बेसिकली ये जो है हेल्थ साइंस से रिलेटेड था और ये काफ़ी प्राचीन काल से जो है इंडिया में डेवलप हो चुका था और चला आ रहा था। इसके जो थे वो दो फेमस प्रैक्टिशनर्स थे जो कि आयुर्वेदा को बहुत ही पहले से जानते थे, जिनका नाम है चक्रा जो कि 1st एंड 2nd सेंचुरी में रहे, एंड देन उसके बाद श्रुता जो कि 4th सेंचुरी में रहे। चक्र संहिता वॉज रिटन बाय द चक्रा इज़ द रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन। और जो चक्र संहिता है वो की चरक द्वारा लिखी गई हैं और इसमें जो है मेडिसिन के बारे में बताया गया है काफ़ी कुछ। इन ट्रीटिस द श्रुता संहिता एंड द सुश्रुता स्पीक्स अबाउट द एलेबोरेटेड सर्जिकल प्रोसीजर। और जो सुश्रुता संहिता है उसमें सर्जिकल प्रोसेस को के बारे में जो है वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे बताया गया है। एल्सवेयर द प्रॉपर paper has become a part of our daily lives. The books we read and the printed on paper, and we used a paper for writing. Paper was invented in China about 1900 years ago by a man named Kai Lun. He bent blunt fiber, cloth rope, and on the bark of trees, soaked this in water and then processed to drain and dry it up and create a paper. Even today, the handmade paper made through a similar process. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हम पेपर डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, बुक्स यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर कई सारी प्रिंटिंग्स हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी पहले चाइना में इन्वेंट हो गई थी, लगभग 1900 साल पहले। ना उस आदमी का नाम था साई लून, जिन्होंने जो है एक ट्री है जो प्लांट उसकी कुछ सारे फाइबर क्लोथ रोप को बार्क ऑफ ट्रीज़ को लिया है और सोक किया है वाटर में। उसके बाद उसे प्रेस्ड करने के बाद ड्रेन आउट किया है और जब वो ड्राइड हुआ है तो उसके पल्प से उन्होंने पेपर क्रिएट किया है। और ये हैंडमेड पेपर जो है आज भी यूज़ होता आ रहा है। The technique of making paper was closely guarded secret of centuries. It is reached to the Korea about 1400 years ago and spread to the Japan soon after. It was known in the Baghdad about 1800 years ago. From the Baghdad, it spread to the Europe, Africa and the other parts of Asia including the subcontinent. और ये जो टेक्निक है पेपर बनाने की, ये क्लोजली जो आज हम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड है और लगभग 1400 साल पहले से ये स्प्रेड होती आ रही है जापान में भी और भी अलग देशों में। अब चलिए हम एक स्टोरी देखते हैं जो कि हमने यहाँ पे देखी थी, द स्टोरी ऑफ अ मंकी किंग। Once upon a time there was a great monkey king who lived in the banks of the Ganga in the Himalayas. अब देखिए ये बहुत पुरानी ज़माने की बात है जब एक मंकी किंग हुआ करते थे जो कि गंगा के किनारे में रहा करते थे हिमालय पे, विद 18,000 फॉलोअर्स। और जिसकी जो थे कम से कम 80,000 जो थे उसके फॉलोअर थे। दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री विच वर वेरी स्वीट। और ये जो है स्पेशल मैंगो ट्री जो था जिसका फ्रूट जो है काफ़ी ज़्यादा स्वीट था, उसी को खा के ये रहते थे। विच वर वेरी स्वीट एंड सच एक्विजिट मैंगो डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स। और वैसे मैंगोज जो है आपको ऐसी ज़मीन नॉर्मल ज़मीन पे देखने को नहीं मिलेंगे। One day, a ripe mango fell into the river and floated all the way of Varanasi. There were the king of the city who was bathing in the river found it and that was amazed when he tasted it. He asked the foresters of his kingdom when they could find the tree for him and they led him to the way of Himalaya. अब जब एक नदी में जब वो एक किंग थे वो नहा रहे थे वाराणसी के, तो जब उन्होंने उसे चखा तो उन्होंने कहा ये बहुत ही अमेजिंग था टेस्ट में। और उसके बाद उस पेड़ को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने कई सारे जो स्लेव्स थे उनको भेजा और उन्होंने कहा कि इसे ढूंढ के लेके आओ, कहाँ है इसका पेड़। तो ये जो वे है उन्हें हिमालय तक लेके गया और किंग एंड हिज courtiers had their fill of the mangoes. At night the king discovered that the monkeys were also feasting on the fruit and decided to kill them.
अब देखिए इसके साथ साथ क्या हुआ कि और भी जो उन्होंने बहुत सारा मैंगो तो लेके आया, लेकिन रात को उन्होंने देखा कि किंग के साथ साथ जो है और भी मंकीज़ जो हैं वो भी उस फ्रूट को खा रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें मार दिया जाए। However, the king of the monkeys walked out to the plain and saved his followers. He broke off the branches and the mango tree and tried them to from a bridge across the river and held on one end till the follower crossed over. Exhausted with the effort of the fell down and lay dying, the human king saw what happened. They tried unsuccessfully and revived the monkey. When he died, the king mourned his death and paid him full respect. अब देखिए क्या हुआ कि जब मंकी ये सारी चीज़ें जो खा रहे थे तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था इन सभी को मारना है। तो उन्होंने क्या किया, कई सारे ब्रांचेस जो हैं वो मैंगो ट्री के उन्होंने तोड़ना शुरू किए ताकि क्या हो, जो मंकीज़ हैं वो गिर के मर जाए। लेकिन सारी चीज़ें करते करते जो है वो अनसक्सेसफुल रहे और इसी चक्कर में इस तरह से जो है ये उन्होंने देखा, जो ह्यूमन किंग थे उन्होंने देखा कि जो अनसक्सेसफुली उन्होंने ट्राई किया है रिवाइव करने की मंकीज़ को, जब वो मर गए तो उन्होंने उसकी डेथ को मतलब उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया और उन्हें फुल रिस्पेक्ट पे की। दिस स्टोरी शोज़ अ पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम द स्तूपा ऑफ अ भरूता। ये जो स्टोरी है ये भरूता की एक जो स्कल्पचर है वहाँ की स्तूपा पे बनी हुई उससे पाई गई है सेंट्रल इंडिया में। और ये जो है बताया गया है कि यहाँ पे जो एक स्कल्पचर शो किया गया है कि आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सी स्टोरी है जो बता रहा है कि आप क्या समझ रहे हैं स्टोरी से। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में, यानी जो कई एंशियंट टाइम से हम बिल्डिंग्स देख रहे हैं, पेंटिंग्स देख रहे हैं, कई सारी जो बुक्स हैं जो कि प्राचीन काल से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये पूरा चैप्टर उन्हीं से रिलेटेड था। So I hope you have got everything and you don't have any doubt, and in case if you have, please ask me. Thank you for the day.